یہ 7 چیزیں شرائط نماز ہیں کہ ان کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو ہمارے بدن کا پاک ہونا ہے، دوسرا ہمارے لباس، جب ہم نماز پڑھنے بیٹھے جو لباس پہنے ہوئے وہ لباس کا پاک ہونا ہے، تیسرے سطر کا چھپانا ہے، مرد حضرات کے لیے بمبی سے لے کے گھٹنے کے نیچے کے 4 انگل تک کا حصہ فرض میں آتا ہے، چھپانا ضروری ہے، کم از کم نماز میں اتنا حصہ تو چھپا ہوا ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ ماں بہنوں کے لیے بھی کہ سر کے بال بھی نہیں دکھنا، کونیاں تک نہیں دکھنا ہے۔ تفصیلات اور بھی آتی ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی پوچھ لیں، بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور چاہتے ہیں جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور وقت کا معلوم کرنا، کون سے وقت کی نماز ہے، کیا ٹائم پہ نماز ہے، یہ نماز کا وقت ابھی ہے یا نہیں ہے، یہ کون سی نماز کا وقت ہے، جیسا ظہر کا وقت ہے، اب عصر کی نماز تھوڑی پڑھیں گے ایسا، تو وقت کا پہچاننا، معلوم کرنا۔ چھٹا ہے قبلہ رخ ہونا ہے، ہمارا چہرہ قبلے کی جانب ہونا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ جنگل بیابان میں چلے گئے جہاں پر اگر ہمارے کو تعین کرنا مشکل ہو جا رہا، قبلہ کی طرح محسوس نہیں ہو رہا، تو سورج کو دیکھ کے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف ڈوبتا ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے مغرب کے سائڈ میں، اس لحاظ سے اس کا اہتمام کریں، یا پھر آجو باجو لوگوں کو پوچھیں۔ آج کل تو اللہ کے فضل سے کئی چیزیں ایسی سائنس میں ایجاد ہو چکی ہیں جس سے ہم کو قبلہ معلوم ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر میں وہ نہیں ہو رہا تو ہمارے دل کا پورا یقین دیکھنا، ہمارا دل دماغ کس طرف رجوع ہو رہا ہے، تو اس طرف ذہن رکھ کر ہم قبلے کی نیت کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو چھٹا کیا ہے، قبلہ رخ ہونا، اور 7واں نیت کرنا کہ ہم نماز پڑھیں، ظہر عصر کون سی نماز پڑھیں، قضا پڑھیں، فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، واجب پڑھیں، اس کی نیت۔ یہ 7 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی مکمل، ہماری نماز شروع نہیں ہوتی ہے۔ اب نماز کے اندر کے فرائض، نماز تو یہ تمام چیزیں الحمدللہ پوری ہو چکی ہیں ہماری، اب ہماری نماز اسٹارٹ ہو رہی ہے ہماری۔ تو نماز کے اندر 7 چیزیں فرض، جس میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جا رہا، غلطی سے بھی اگر چھوٹ جا رہا تو نماز کو دہرانا پڑتا ہے۔ نماز کے اندر فرض اگر چھوٹ جا رہا، جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو، تو نماز کو دہرانا پڑتا ہے۔ اور اگر واجب چھوٹ رہا ہے، نماز کے اندر کے واجبات بھی رہتے ہیں، اگر واجب چھوٹ رہا، غلطی سے اگر چھوٹ رہا تو سجدہ سہو کرتے ہیں، سجدہ سہو کر کے نماز مکمل ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کے واجب چھوڑے تو نماز کو دہرانا پڑے گا۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھو۔ تو یہ فرائض ہے، اس میں سے ایک بھی نہیں چھوڑنا ہے، 7 چیزیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلے تو تکبیر تحریمہ کا کہنا فرض ہے نماز کے اندر، انفرادی نماز پڑھو آپ یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اگر جماعت سے پڑھے تو امام صاحب کہتے ہیں، تو ہم بھی پیچھے کہنا ہے، ہمارا اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، قبلہ رخ ہمارے ہاتھاں دونوں ہتھیلیاں رہنا ہے، اور انفرادی پڑھے تو بھی اللہ اکبر کا کہنا فرض ہے، جماعت سے پڑھے تو بھی اللہ اکبر کا کہنا فرض ہے، لیکن جماعت میں اتنا یہ ہمارے کانوں تک آواز آنا ہے، بازو والے کو ڈسٹرب نہیں ہونا ہے۔ بہت سے لوگ کیا ہے، پڑھنا ضروری ہے بلکہ اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ بعض مرتبہ امام صاحب کو مشکل ہو جاتی ہے کہ بھئی کیا ہوا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکعت کو باندھنا ہے، یہ فرض ہے نماز کے اندر۔ پھر نماز میں قرات یعنی قرآن کا پڑھنا، قیام کرنا یعنی کھڑے رہنا ہے نماز کے اندر۔ شرعی مجبوری آپ نہیں ٹھہر سک رہے تو بیٹھ کے پڑھنا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ اچھے خاصے ہیں تو نماز کے اندر قیام کرنا یعنی نماز میں کھڑے رہنا فرض ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جماعت جب ٹھہری رہتی ہے، مرد حضرات کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جماعت ٹھہری ہوئی، امام صاحب اگر رکوع میں چلے گئے تو بہت سے لوگ جو بعد میں آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں ایک دم رکعت بن کے سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں، قیام نہیں کرتے یعنی ٹھہرتے نہیں، تو وہ رکعت نہیں ہوتی ان کی، کیونکہ فرض ہے قیام کرنا۔ جتنی دیر تو آپ کھڑے رہنا تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر 1-2 سیکنڈ ایسا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا نہیں ہے، پڑھے تو اتنی دیر تو بھی آپ کھڑے رہنا ہے نماز میں، کہ معلوم ہونا کہ آپ کھڑے ہیں نماز۔ اس کے بعد میں رکوع میں جانا ہے، اب رکوع میں جائیں گے اور سبحان ربی العظیم ہم بولیے اتنی دیر ہم رکوع میں رہے اور امام صاحب بھی رہے تو وہ رکعت ہم کو ملتی ہے، اور اگر ہم رکوع میں گئے امام صاحب ایک دم اٹھ گئے، ہم
सुबहान रब्बियल अज़ीम का मीम पढ़ने में 6 भी, और इमाम साहब समी अल्लाह का सीन अगर बोल दिए, उनका सीम अगर हमारा मीम के साथ मिल गया तो रुकू हमको नहीं मिलती है, और रुकू नहीं मिली तो फिर वो रकात हमको फिर से दोहराना पड़ता है। वो रकात हमको नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद मुकम्मिल करना पड़ता है रकात को। तो इसका जहन रखें, इस चीज़ का ख़ास तौर से मर्द हजरात के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि नमाज में आते हैं तो जमात ठहर जाती है, रुकू में चले गए तो एकदम सडनली आके रुकू में चले जाते हैं, तो इसलिए बता देना मुनासिब समझा, इसलिए आपको बता दें। तो दूसरा है क़याम करना नमाज के अंदर। तीसरा है क़िरात, यानी कुरान का पढ़ना। नमाज के अंदर कुरान का पढ़ना फ़र्ज़ है, जैसे सूरह फातिहा है, ज़म्मी सूरह है, जो कुरान है इसका पढ़ना फ़र्ज़ है। अब जमात से पढ़ेंगे तो आपके नज़दीक इमाम साहब का पढ़ना मुसल्ली क्योंकि ताबे होता है इमाम के, तो इमाम का पढ़ना मुसल्ली के बराबर हो जाता है, मुसल्ली पढ़े वैसा हो जाता है। इनफरादी पढ़े तो कुरान पढ़ना तो फ़र्ज़ है। इमाम का कुरान नमाज में चाहे जहरी नमाज हो या सिरी नमाज हो, यानी आवाज़ से पढ़ो या बग़ैर आवाज़ की नमाज पढ़ो, इमाम साहब चूँकि पढ़ते हैं सूरह फातिहा वगैरह ज़म्मी सूरह, तो वो कायम मुकाम क्या है, मुसल्ली के लिए होता है। तो ये तीसरा क्या है नमाज में क़िरात का पढ़ना, यानी कुरान का पढ़ना। चौथा है रुकू करना। रुकू अच्छी तरह से करना है, घुटनों पे हाथ दे के अच्छी तरह से रुकू करना है, और सुबहान रब्बियल अज़ीम कम से कम 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है, और जितना भी आप पढ़ सकते हैं 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा, जैसा आप चाहें मुनासिब भी पढ़ सकते हैं। तो सुबहान रुकू अच्छी तरह से करना है। पीठ तख्ते के मानिंद होना है, मर्द हजरात के लिए पीठ तख्ते के मानिंद होना है, कि कोई चीज़ पीठ पे रख दी, कमर पे रख दी तो वो गिरे नहीं। तो रुकू करना फ़र्ज़ है। 5वां है 2 सजदे करना। 1 रकात के अंदर 2 सजदे करना फ़र्ज़ है। 1 सजदा करे तो नमाज नहीं होती, 2 सजदे करना फ़र्ज़ है नमाज में 1 रकात के अंदर। छठा जो है फ़र्ज़ क़ैदे आखिरा में, यानी जिस क़ैदे के अंदर हम सलाम फेरने वाले हैं, जैसा 2 रकात की नमाज पढ़ नियत करें अपन तो 2 रकात के ऊपर सलाम फेरते हैं। 3 रकात की नियत करें या 4 रकात की नियत करे हुए हम, जैसा ज़ोहर पढ़ रहे या असर पढ़ रहे या मगरिब इशा पढ़ रहे, तो उस वक्त में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बार क़ैदे में बैठते हैं वो तो क़ैदे ऊला रहता है, पहला क़ैदा रहता है। सलाम फेरने वाला जो रहता है वो दूसरा सानी बोलते हैं उसको, क़ैदे सानी बोलते हैं। तो सलाम फेरने वाले क़ैदे में तशहुद पढ़ने की उतनी देर बैठना फ़र्ज़ है। सलाम फेरने वाले क़ैदे में अत्तहियात के बक़द्र पढ़ने के बक़द्र बैठना फ़र्ज़ है, पढ़ना वाजिब है। तशहुद का पढ़ना वाजिब है, लेकिन उतनी देर बैठना फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं कि बैठे क़ैदे में बैठते कि सलाम फेर दिए न, नमाज नहीं होती, क्योंकि फ़र्ज़ छूट जा रहा आपको। कम से कम आप क़ैदे में इतनी देर बैठना है कि अत्तहियात पढ़े उतनी देर आपका वक्त होना चाहिए। और 7वां जो है अपनी मर्ज़ी से नमाज ख़त्म करने की नीयत से सलाम फेरना, सलाम फेर के नमाज को मुकम्मिल करना। इसको बाज़ उलमाए किराम वाजिब भी करार देते हैं और बाज़ उलमाए किराम इसको फ़र्ज़ भी करार देते हैं। तो ये 7 चीज़ें ज़रूरी हैं, ये नमाज के अंदर के फ़राइज़, इसमें से एक भी छूटेगा तो नमाज आपकी नहीं होगी। तो पहला था तकबीर तहरीमा का कहना, यानी अल्लाहु अकबर कहना। दूसरा क़याम करना, यानी नमाज में खड़े रहना। तीसरा क़िरात पढ़ना, यानी कुरान का पढ़ना कुछ हिस्सा। चौथे रुकू करना। 5वां 1 रकात में 2 सजदे करना। छठा क़ैदे आखिरा में सलाम फेरने वाले क़ैदे में अत्तहियात के बक़द्र, तशहुद के बक़द्र, पढ़ने के बक़द्र बैठना। और 7वां अपनी नीयत से नमाज ख़त्म करने की नीयत करके सलाम फेरना, ये भी फ़र्ज़ में आता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये चीज़ों में से एक भी छूटेगा तो क्या आपकी नमाज नहीं होती, दोहराना पड़ता नमाज। अब नमाज के अंदर के फ़राइज़ में से और चीज़ें ऐसी हैं कि वाजिबात है, जिसको इंसान को जैसे एकदम मालूमात नहीं होने की वजह से सरसरी ले लेते हैं, जिससे नमाज नहीं होती। जैसा रुकू में से जब हम उठे हैं तो क़ौमा जिसे कहते हैं, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद रब्बाना लकल हम्द जो कहते हैं, तो सीधा स्ट्रेट ठहरना है अच्छी तरह से। ठहरने के बाद रब्बाना लकल हम्द कहना है, उसके बाद सजदे में जाना है। बहुत से हज़रात क्यों ऐसा रुकू में से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलते कि सिपल के फिर चले आते सजदे में, तो आप क़ौमा नहीं करते, यानी खड़े नहीं रहते, रुकू के बाद उठ के ठहरना है।
रब्बाना लकल हम्द बोलने के बाद फिर सजदे में जाना है, तो इसमें गफलत होती है। बहुत से अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी बात मरतबा गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखें, ये वाजिब है। नमाज के अंदर खौमा करना वाजिब है। अगर ये छूट जा रहा, गलती से छूट जा रहा, तो सजदा सहो करना पड़ेगा। आप जानबूझ के छोड़ रहे आप तो नमाज को दोहराना पड़ता है। तो खौमा करने के अंदर एहतियात करें। और दूसरी चीज़, जब हम दो सजदे करते हैं, एक सजदा करके जब बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं, दूसरा सजदा करने के दरमियान जो वक्फा हम बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं। तो वो जलसा करना भी वाजिब है। अब बहुत से हज़रात में क्या होता है, उसको सजदे में से उठे, अल्लाह अकबर बोलते कि फिर सडनली अल्लाह अकबर के फिर दूसरे सजदे में चले जाते हैं, वक्फा नहीं देते। तो बैठना है थोड़ी देर, जलसे में बैठना भी वाजिब है, उसमें भी गफलत हो जाती है। यूँ आते कि सजदा मारे फिर उठे, फिर ठोंगा मारे, ऐसा हो जाता, कव्वा ठोंगे मार के गए, ऐसा यूँ आ रहे यूँ जा रहे, यूँ आ रहे यूँ जा रहे, ऐसा नहीं। सजदे में गए, सजदे में से उठ के आप बैठो, फिर उसके कहते हैं फिर उठो। दुआएं भी रहती हैं, उसका भी एहतिमाम कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और अगर किसी की नमाज रकातें छूट गई, जमात से हम नमाज़ पढ़े, अगर किसी की पहली रकात दूसरी रकात तथा छूट जाती है कभी, तो जब हम अत्तहियात में बैठे रहते, इमाम साहब सलाम फिरते, उस वक्त में हम सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे, तशहहुद पढ़ेंगे। तशहहुद पढ़ने के बाद हम खामोश हो जाएंगे। इमाम साहब पूरी मुकम्मिल दुरूद इब्राहिम दुआए मानसूरा पढ़कर सलाम जब फेरेंगे, उन सलाम फेरने के बाद हमारी जो रकातें छुट्टी भी हैं वो हम उठकर मुकम्मिल करेंगे। एक रकात छुट्टी या दो रकात छुट्टी, जैसा भी है आपकी जो रकातें छुट्टी है उसको मुकम्मिल करना है। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से सलाम फिर के नमाज को ख़त्म करना है। और दुआ इबादत का मक़सद है, दुआओं का भी एहतिमाम करना है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि भाई जमात के साथ इमाम के साथ ही दुआ करना आप बल्कि भी ज़रूर वो नहीं है। इमाम का ताल्लुक़ आपका जो रहता है तकबीर तहरीमा से सलाम फेरने तक का रहता है। उसके बाद में एक चीज़ रहती है कि भाई दुआ करते हैं सुबह की आमीन, तो किसकी आमीन से किसकी दुआ कबूल हो जाए भूल नहीं सकते। उस लिहाज से क्या उलमाए कराम अपने जो बड़े हजरात गुजरे वो लोग रखे हैं, और उसमें रहता भी क्या दुआएँ जो करते हैं, खुसूसन जो मजमूई तौर पे दुआएं जो होती हैं उसमें तो कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, जैसे रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसरतुम व फिल आखिरति हसरतुम व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल क़ौमिल ख़ासिरीन। ऐसी और भी जो दुआएं पढ़ते हैं, कुरान की आयतें रहती हैं और वो मुकम्मिल दुआएं हैं और बहुत ही मौज़ू और फ़ायदेमंद दुआएं जो पैगम्बरों से अल्लाह तबारक तआला ने वो दुआएं करवाई हैं और उसको अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया ताकि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। इसलिए 1-2 मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं, तो दुआओं का भी ख़ास एहतिमाम करना है। और इनफरादी भी आप नफिल नमाज़ें सुन्नतें वगैरह पढ़कर ख़ास दुआओं का एहतिमाम करना है। जितना हम दुआ करेंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह उतना हमसे खुश होते हैं और फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं कि देखो मेरे बंदे को, फलां बंदे को, उसको वो मुझसे मांग रहा है, मुझसे आजिज़ हो रहा है, मेरे सामने वो गिड़गिड़ा रहा है, तो उसको मालूम है कि उसका एक कोई रब है, उसको दुआ कर रहा मुझसे, यानी उसको मालूम है कि वो मैं दुआ कबूल करने वाला हूँ इसकी, अल्लाह खुश होते हैं, तुम गवाह रहो, मैं इसकी मग़फ़िरत कर दूँ। मैंने जो मांग रहा है उसके ऊपर उसकी मसलियत को देखूंगा मैं, यानी उसके लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़ तो उसको मैं अता करूँगा, अगर उसके लिए नुकसानदेह है तो उससे उसको महफूज रखूँगा, उससे अच्छी चीज़ को दूँगा। तो दुआओं का ख़ास एहतिमाम होना, दुआ भी क्या है, इबादत का मक़सद है, इबादत का असल जो फल है ना वो दुआ ही है। हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो दुआओं का ख़ास एहतिमाम करना चाहिए और नमाज़ों का भी ख़ास एहतिमाम करें। बार बार बताया जा रहा है कि भाई फजर के 4 रकात हैं जो सुन्नत 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 12 रकात हैं 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफ़िल, असर के 8 रकात हैं 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़, मगरिब के 7 रकात हैं 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफ़िल, इशा के 17 रकात हैं 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफ़िल, 3 वाजिबुल वितर 2 नफ़िल। और जुमे के मर्द हजरात के लिए 14 रकात हैं 4 सुन्नत 2 फ़र्ज़ फिर 4 सुन्नत फिर 2 सुन्नत 2 नफ़िल। इनका अहतमाम करना है। हम फ़राइज़ के साथ साथ वाजिबात का अहतमाम करें, सुन्नतों का अहतमाम करें। हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इसका खुलासा है कि जो 12 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का अहतमाम करता है उसके लिए जन्नत में महल है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। कि फजर की 2 रकात सुन्नत, ज़ोहर के 4 रकात सुन्नत पहले के और बाद के 2 रकात सुन्नत, मगरिब के बाद की 2 रकात सुन्नत, इशा के बाद के 2 रकात सुन्नत, ये 12 रकात सुन्नतों का जो अहतमाम करने वाला है
जन्नत उसके लिए वाजिब है। वजह इसकी ये है कि जब इंसान जब सुन्नतों का अहतमाम करेगा तो उससे तो नमाज छूटेगी नहीं, और जो इंसान 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करेगा वो गुनाहों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करेगा। और बाई चांस से गुनाह हो भी जाते हैं तो चूँकि हम नमाज में इस्तग़फ़ार रहता है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, उसके अंदर पूरी ये 6 दुआ का मतलब भी वही है कि अल्लाह ताला मैंने अपने आप पे जुल्म कर लिया, गुनाह कर लिया, तू माफ़ कर, मैं तौबा करता हूँ, तू बड़ा गफूर रहीम है। तो इस तरह से क्या है, गुनाहों की माफ़ी भी हो जाती है। तो इससे नमाज़ों का ख़ास अहतमाम करें। साथ ही साथ क्या है, नफिल नमाज़ों का है, जैसा इशराक की नमाज़ है, फजर की मकरू टाइम ख़त्म, फजर का टाइम ख़त्म होने के 20 मिनट के बाद में इशराक का नमाज का वक्त होता है। 4 रकात 2-2 रकात से पढ़ना रहता है, हज और उम्रे का सवाब मिलता है। ऐसे ही चाश की नमाज है, सूरज की जब रोशनी चमकती भी आती है 9 बजे के टाइम पे, 8:30-9 बजे के टाइम पे, जब से लेके ज़ोहर का टाइम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले तक का चाश का टाइम रहता है, उस टाइम पे नमाज़ पढ़ना है। 12 रकात, 2-2 रकात से भी आप 2, 4, 6 कितने चाहे पढ़ सकते हैं। वो जिस्म की जो हमारे जोड़ है 360 जोड़ जो जिस्म में हमारे जो जॉइंट्स जो है हमारे जिस्म में 360 जोड़ है हमारे जिस्म के अंदर। एक जोड़ भी अगर हमारा ख़राब होगा तो जिसका ख़राब है उसको पूछो ज़िंदगी कैसी गुजरती है। तो अल्लाह हमको सेहतमंद रखा, हमारे जोड़ों को मजबूत रखा, सही सलामत रखा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका फहम खुलासा है कि उसके शुक्राने के तौर पर रोज़ाना सदका करो, बोले अल्लाह के रसूल। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल 360 सदक़े हम कहाँ से करेंगे, हमारा खाने खुदा का बराबर नहीं रहता है, कैसा करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को सलाम करना भी सदका है, किसी को रास्ता बता देना भी सदका है, रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज़ है उसका हटा देना भी सदका है, किसी को अच्छी बात बता देना भी सदका है, गुनाहों से रोकना भी सदका है। और मस्जिद में कोई कूड़ा करकट है उसको उठाकर बाहर फेंक देना, मस्जिद की सफाई करना, ये भी सदका है। और इसी तरह और भी है। और उसके 2 रकात चाश की नमाज़ पढ़ना वो पूरे जिस्म के सदक़े अदा हो जाने के बराबर है वो, क्योंकि नमाज में बंदे का हर जुड़ जो रहता है नमाज में जुड़े हुआ रहता है। बंदे का जिस्म जो रहता है 360 जोड़ जिस्म के जोड़ा है वो नमाज के अंदर उसके साथ में रहते हैं, तो वो पूरे जिस्म के सदक़े अदा हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो चाश की नमाज का भी अहतमाम करना। और ये भी बताया इसकी फजीलत के अंदर कि रोज़ी में अगर बरकत चाहते हैं तो चाश की नमाज का अहतमाम करो, आपके कारोबार में बरकत होंगी, रोज़ी में आपके बरकत होंगी, आसानियाँ पैदा होंगी आपके कारोबार के अंदर, रोज़ी के अंदर। तो चाश की नमाज का अहतमाम करना है, गुनाहों से माफ़ी भी होती है, इसका अहतमाम करना है। और मगरिब की नमाज के बाद अवाबिन की नमाज, सुन्नत फ़र्ज़ पढ़े बाद में नवाफिल नमाज़ें रहती हैं 20 रकात है अवाबिन के, आप जितने चाहे पढ़ सकते हैं। 2 रकात पढ़ो, 4 रकात पढ़ो, 6 रकात पढ़ो, 10 रकात पढ़ो, जब मौका मिला 20 रकात पढ़ना है तो 20 रकात पढ़ो। आप अल्लाह आपको तौफीक दे रहा जितना उतना करो, कम से कम से भी करो। तो 6 रकात अगर हदीस में बताया गया है तो 6 रकात अवाबिन के पढ़ता है उसे 12 साल की नफिल इबादत का अजर सवाब। इसी तरह तहज्जुद की नमाज है, 12 रकात होते हैं, आप 2 रकात पढ़ो, 4 रकात पढ़ो, 6 रकात पढ़ो, आप जितना आपको जब तौफीक जैसी मिली आप वैसा पढ़िए। तहज्जुद की नमाज बहुत कीमती है, नमाज की बहुत अहमियत है। अल्लाह तबारक ताला पहले आसमान पर आकर अल्लाह बंदों से मुखातिब होकर कहते हैं कि है कोई मग़फ़िरत के चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, है कोई रोज़ी में बरकत चाहने वाला मैं उसकी रोज़ी में बरकत दूँ, है कोई शिफा का चाहने वाला मैं उसकी शिफाअत करूँ। तो इस तहज्जुद का भी अहतमाम 2-2 रकात क्यों ना आते पढ़ने का अहतमाम करें। और भी दूसरी नमाज सलातुत तस्बीह की नमाज है, अक्सर हम लोग का जिक्र है क्या है ताख़ रातों में पढ़ते हैं और इबादतों की रातों में हम उसका अहतमाम करते हैं। तो उसका भी हम जब मौका मिला अल्लाह तौफीक दे दिया, अड़प छड़प नहीं सही 8 दिन में एक बार या महीने में एक बार, जैसा भी आपको अल्लाह तौफीक देना उसका अहतमाम करें। सलातुत तस्बीह का वो सलातुत तस्बीह जिसमें तस्बीह 300 मरतबा पढ़ी जाती है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। उसका सिर्फ ताख़ रातों में या मुबारक रातों में पढ़ना नहीं है बल्कि हमेशा पढ़ने का अहकाम है, रोज़ाना भी पढ़ो बल्कि बताए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमको जैसी तौफीक हो इसका अहतमाम करें, उससे बहुत बड़ी फजीलत है जिसमें क़ुव्वत और ताकत आती है, हमारी परेशानियाँ दूर होती हैं, दिमागों के कई बीमारियाँ दूर होती हैं, इससे बहुत सी फजीलत है इसमें, उसका हमें अहतमाम करें। और सिर्फ ये मर्द हज़रात ही बन के नहीं, घर के ख़वातीन भी पढ़ना है, इसका भी अहतमाम करना है। ये नहीं कि सिर्फ नहीं पढ़ना है। और बहुत से लोग क्या है खुद भी नहीं पढ़ते, दूसरों को भी डरा देते, तहज्जुद नहीं पढ़ना, कोई भी आ जाते 40 दिन पढ़े बाद में कोई भी सामने ठहर जाते, अपन अब नहीं बोले तो फिर वो लोग अपने को मार देते, उन्होंने पढ़ते थे तो वैसा हो गया था, इन्हों पढ़े थे तो उनको मार पड़ गई थी, उन्होंने पागल हो गए, ये हो गए, कुछ भी नहीं होता। ज़माने से पढ़ लेते यार अल्हम्दुलिल्लाह, बचपने तो कुछ भी नहीं हो, अल्लाह के करीब होते हैं। और अगर उस टाइम पे हम कुछ गलती भी ज़बान से हमारी हो भी गई पढ़ने करने में तो भी फरिश्ते हमारे को वहाँ दुआ देते, अल्लाह ताला इसको पढ़ने नहीं आ रहा फिर भी नहीं पढ़ा हुआ, फरिश्ते खुद रहते हैं
حفاظت کرتے ہیں ہماری. اللہ تعالیٰ خود آسمان پہ ہے, پھر کون سی مجال ہے کس کو ہمارے کو تکلیف دے. وہ جنات و شیاطین جو حملے اور ہوتے ہیں نا, وہ لوگ جادو ٹونا سیکھنے کے واسطے جو الگ سے عمل رہتا ہو, نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا. کبھی بھی ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو, 40 دن پڑھو, 4 مہینے پڑھو, 4 سال پڑھو, آپ ایک ہی ٹائم پہ پڑھو, ٹائم چینج کر کے پڑھو, آپ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے آپ کو نقصان کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے, بلکہ آپ کی حفاظت ہوتی ہے. کوئی چیز آپ کو ڈراتی نہیں. لوگ ڈرا دیتے آپ کے ذہنوں میں آ کے بٹھا کے دماغ خراب کر دیتے, خود بھی نہیں پڑھتے, عمل نہیں کرتے, دوسروں کو بھی عمل کرنے سے روک دیتے. اور ایسا پڑھے تو ایسا ہو جاتا, نہیں پڑھنا, وہ مولسا بھائی پڑھ لیتے, وہ اللہ والے لوگ ہی پڑھ لیتے, وہ مریدہ ہی پڑھ لیتے, وہ مرشدہ ہی پڑھ لیتے. ایسا نہیں ہے. ہر ایک ایمان والے کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. نفیل ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ فائدے مند رہیں گے, نہیں پڑھیں گے تو آپ کو نقصان ہی ہے. لیکن دوسروں کو رکانا نہیں, خود بھی عمل نہیں کرے اور دوسرے کو عمل سے روک رہے آپ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی عبادت سے روکے بندے کو. اس واسطے ان چیزوں سے رکیں آپ اور اہتمام کریں. کوئی چیز کچھ نقصان پہنچانے والی نہیں رہتی ہے. وہ لوگ غلط عمل سیکھنے کے واسطے عمل کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ہوتا ہے مسئلہ, اپنے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے والا